ninth National Conference on Strategies and Challenges for Promotion of Inclusion. So, without wasting any time, we would like to start our event with Saraswati Vandana. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी. Now it's time to enjoy welcome dance by Preeti, Akansha and Nishtha from VI department. झूम झूम हर गली, बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली. So, I would say that light and brightness has always been equated with positivity. We will now have the lamp lighting ceremony. Sanjana ma'am and Priyanka ma'am to facilitate Swati Sanyal ma'am. So now we would request Deputy Director Sanjana Mittal ma'am to kindly come up on the stage and present welcome address for the conference. A very good morning to all the students and the delegates who are present over there for this two-day CRE program on challenges and strategies for promotion of inclusion. So I, on behalf of Ashtavakra Institute, welcome all the participants over there for this conference. This is a great pleasure that we have introduced and included this topic of the conference. The valuable, that is CRE programs, provided by, we could also say provided, and the report is there on UNICEF in its report, seen, counted, included using data to shed light on the well-being of the children with disabilities. It is estimated that 240 million children have disabilities globally. And I would like to, that everybody should listen to that, 240 million children, they are suffering from disabilities globally. But still today, many children with disabilities remain invisible and are put at margin of the community due to the discrimination that they face. The important UN Global Study on Children Deprived of Liberty has highlighted the overrepresentation of the children with disabilities in detention centers all over the world, where they are more at risk in exploitation, violence, abuse, and other forms of ill treatment. I would like to focus that this CRE program is over here, that what challenges we are facing and how we have to promote this kinds of inclusion. Before starting this program, we were just showing an that is video of our inclusive school, that is the Orleans. The students who are trained at Ashtavakra school, they are sent to our, that is Orleans schools, and we are having all kind of facilities over there. I'm just sharing this information because I could say that this is the only one school in northwest area over here which is providing all special, that is facilities to promote, that is inclusion. We could say only this school, the Orleans schools, वहाँ पे only one एक ऐसा है, we are having a swimming pool which is temperature controlled. And we could utilize it for the water therapy, that is for the special children. Last week also we had a workshop where international delegates to ITE, and they were so happy that we are performing and we are working so hard with collaborative efforts. क्योंकि इसमें we are not only working as Ashtavakra Institute, here we are working as
and group of institutions. और they were so happy sir, I would like to tell you that international जो speakers आएंगे वो उन्होंने बहुत खुशी हुई थी first time. वो कहते थे कि हमारे पास सारी facilities available हैं, हम नहीं जानते थे कि आप इतने छोटे से एरिया में यहाँ के इतने वंडरफुल कर रहे हैं. और उन्होंने ये वादा किया है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे इनवाइट करेंगे. So this is I'm just sharing क्योंकि you are the representatives over here, you are coming from all walks of life, different schools से आ रहे हैं. So without wasting this time, I once again that is welcome our chairman sir. First of all, officially I welcome you sir. You have spared your valuable time and you have come to this conference. Secondly, I welcome our Swati Sanyal ma'am. She's from Delhi University. She's running visually impaired school. Can we have a round of applause? That very rarely she comes and to the conferences. She was just sharing with me. I welcome her. Our Dean Academics ma'am, Saraswati Sharma ma'am. I welcome you ma'am. We have Atul sir over here. He is a renowned psychologist over there from Ambedkar Hospital. We welcome you sir over here. We have Abha Pradhan, the expert lecturer over here. She has a great experience from Shroff Hospital and Gangaram Hospital, and she is wonderful person, and I really appreciate that she has given time. She has wonderful experience on hands-on training, and she has just come up with wonderful TLMs also she would be sharing. So can we have a round of applause for her, and officially we welcome you ma'am. And we have Dr. Neema. She will also be sharing in this conference. She will be sharing you the personal, actually the topic of the conference is challenges and what strategies she is using to promote, that is inclusion. So this is what I once again welcome all the participants and some of the speakers. They will be joining in the second half. We will be sharing the expertise on the next session. So thank you sir. Thank you all of you for this wonderful workshop. Thank you ma'am. I request Swati ma'am to kindly come up on the stage and please share your motivational words. It's really been an honor for me to be here. As just now, Madam has mentioned that people call me and I don't go. It's not like that I am very unsocial or any such thing. I really don't find any reason to be away from my students. I always feel I'm so very comfortable with the group. So while I was coming here, I was wondering what to do. They have given me a good name, guest of honor. But the moment I entered here and I looked at the student groups, I felt ये तो मेरा ही जगह है, तो मैं यहाँ पर guest कैसे हो सकती हूँ? I am one of you, but nevertheless, from my core of my heart, I thank you for calling me here and giving me this honor. बहुत लंबा समय हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए. बहुत जहाँ कहीं भी मैं थोड़ी बहुत जाती हूँ, मुझे लगता है हर जगह से मुझे कुछ सीखने को मिलता है. यहाँ का कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है, मैं देख रही थी, स्ट्रैटेजीज एंड चैलेंजेस फॉर प्रमोशन ऑफ इंक्लूजन. और जब हम आए यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए, आई फाउंड योर चेयरमैन सर कॉल द स्टूडेंट्स, कहे कि आप आइए और आप दीप जलाइए. द मोमेंट आई लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे लगा ये जो आत्मीयता है, ये जो बच्चों के संग बड़ों की या उनके अध्यापकों की आत्मीयता है, वही शायद कुंजी है. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी. My Hindi is not good because I am a Bengali, you can understand from my accent. But for last 34 years I have been teaching through Hindi medium, so somehow I have forgotten English. So थोड़ी बहुत हिंदी में था थी कि गड़बड़ होगी, झेल लीजिएगा. हम लोग तो सब स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, हम किसी की कमी को नहीं देखते हैं. We look at the strength of the person. So whatever it is. जो मैं कह रही थी, मुझे लगा ये जो आत्मीयता है, यही शायद पहल है किसी भी इंक्लूजन की. चाहे हम किसी दूसरे परिवार में जाते हैं, अगर मुझे सहर्ष स्वीकार किया जाए, अगर मुझे एक्सेप्ट किया है, दैट मेक्स माई इंक्लूजन इन दैट न्यू एनवायरनमेंट सो वेरी एफर्टलेस, सो वेरी कंफर्टेबल. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मे बी सर, I will remember it next time when we have this kind of program.
I have never seen the students get any opportunity apart from preparing the diya and everything, and only the senior people come and do it. I am not against it, but I like the gesture, and this is something you could say, wherever I go, I try to take something from there. So this is my first liking. दूसरा तो मैंने बोला, आते ही लगा स्टूडेंट ग्रुप है, तो मुझे गेस्ट क्यों बोला जा रहा है. आई एम वन ऑफ यू. रही बात इंक्लूजन की, हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारी पढ़ाई लिखाई हम करके आए हैं यहाँ पर. एंड इफ़ यू हैव कम फॉर अ CRE प्रोग्राम, आई कैन सेफली एज्यूम दैट यू पीपल आर टीचिंग समवेयर. आप लोग ज़्यादातर लोग तो टीचर ही होंगे, या कम से कम अपना BEd या कुछ करके अपना क्या बोलते हैं CRE स्टेटस को लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यू आर ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, आई बिलीव. So you are aware of the theory and practices of inclusion. हमारे साथ ये है कि हम तब काम शुरू किए थे जब ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन की बात होती थी, अर्थात स्पेशल स्कूल्स की. फिर एक समय आया जब हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर बल देने लगे थे. ज़्यादातर जहाँ कहीं भी हम जाते थे, हम देखते थे बच्चों को रिसोर्स रूम में लेके जाया गया, एंड इन द रिसोर्स रूम दे वर बीन गिवन वॉट एवर वर रिक्वायर्ड फॉर देम, एंड द थिंग्स हैव चेंज्ड. And now we have come to this concept of inclusion. लेकिन इसको खाली शब्दों की हेर फेर की तरह या शब्दों में चेंज की तरह ना देखकर, अगर हम समझ पाए कि इसके पीछे हमारी मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं, तो जो मैंने आपसे कहा, अपने बच्चों को जानो. बहुत सारे जगह पे टीचर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है, इतने लंबे समय हो गया है, तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ, जैसे जनरल टीचर्स हैं, आप आइए, आप इंक्लूशन के बारे में बात करिए, आप स्पेशल नीड्स के बारे में हमें अवगत कराइए. तो मैं टीचर से पूछती हूँ, आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई स्पेशल नीड है? मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइंड दीज टीचर्स लुक एट द स्पेशल एजुकेटर फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट बिकॉज दे डोंट नो देयर स्टूडेंट्स. और मुझे लगता है दैट इज़ द शुरुआत. यू शुड नो योर चाइल्ड. जैसे मान लीजिए जब हम बहुत छोटे थे, या कि आप सभी लोगों के साथ आपने देखा होगा, बच्चा जब रोता है, माँ हर रोने को इंटरप्रेट कर लेते हैं. अभी भूख लगी होगी, अभी कुछ दूसरी तरह की असुविधा होगा, या मेरी अटेंशन सीख करने के लिए कर रहे हैं. बच्चा बोला नहीं, बट मदर कुड इंटरप्रेट. समवेयर आई फील, इफ़ मुझे कोई स्ट्रैटेजी पूछे तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को अगर मैं इतने अच्छे से जानूं कि उसकी क्या ज़रूरत है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ को पूरा करने में. लेकिन वो इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए. जो मुझे कभी कभार लगता है कि शायद मैडम कुछ नेगेटिव बोल रही हैं, क्या मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ. मुझे मालूम है, अभी भी मेरे ट्रेनिंग्स गए हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में पढ़ाने के लिए. There are a lot other works being given to the teachers apart from working with the children with special needs. वही काम कम मिल रहा है, उनको ज़्यादातर काम मिल रहा है as substitute teachers. ठीक है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है. And you have been given a classroom to you, so you had an opportunity to look at the students and find out who is the child who requires some additional help, and you can work in that way. There is no harm in it. लेकिन बहुत सारे काम मिलने के वजह से क्या हो जाता है, कई बार जिस बच्चे के लिए हम वहाँ गए हैं, जो मेरा स्पेशल नीड बच्चा है, कई बार उसके लिए हम लोग समय नहीं दे पाते हैं. अक्सर मेरे टीचर ट्रेनिंग्स जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको मालूम है सरकारी स्कूलों में इट्स नॉट ऑलवेज एज गुड एज द स्कूल दैट मैडम हैज़ शोन अस. द रियलिटी इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, सरकारी स्कूल की थोड़ी अलग है. सुविधाएं बहुत कुछ है, तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है टीचर्स को, बट समहाउ आई फाइंड जो चीज़ें होनी चाहिए अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह रही है, जिसके लिए मेरे जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत सारी कारण समझाते हैं कि देखिए किसी भी क्लास में अब हो गया है, आप एडमिशन दे सकते हो. अगर बड़ा हो गया बच्चा हमारे पास एडमिट होके आया है तो उसको पहले से, मैं विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, ब्रेल नहीं आती है तो फिर उनको इंक्लूड करना कितना मुश्किल हो जाता है. इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है
कई बार वो कहते हैं आवर टाइम टेबल इज नॉट इन सिंक विद द टाइम टेबल ऑफ द रेगुलर टीचर्स। तो हम कब क्या करें, हमारे को जो टाइम टेबल दिया गया उस हिसाब से हमें काम करने को मिल नहीं रहा है। दीज आर डेफिनेटली चैलेंजेस। लेकिन मैं उन लोगों को कई बार बोलती हूँ, बेटा अगर मानो घर में कोई फंक्शन है, मैं बहुत जमीनी धरातल में बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा बातें बोलूँगी तो फिर कुछ टेक्स्ट बुक जैसा लगेगा। घर में कोई फंक्शन है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी अगर हमें लगता है बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है, टाइम निकाल ही लेते हैं, कभी ना कभी उनको पढ़ाई देते हैं समय निकालते हुए, ताकि मेरा बच्चा पीछे ना जाए। क्यों नहीं हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसा सोचे, ठीक है प्रिंसिपल ने कुछ और काम दे दिए थे, वो हमने किया, इतनी रिकॉर्ड्स बनाना है, वी कैन कैरी सम होमवर्क एट होम, ले जा सकते हैं, उसको मैं घर में जाके पूरा करूं और यहाँ पर इन बच्चों के साथ थोड़ा काम करूं, क्योंकि बच्चे मुझे स्कूल में ही मिलेंगे और बच्चों के साथ काम करने का मतलब वही है बच्चे को भली भांति जानना, जो बहुत ज़रूरी है। जानने का मतलब खाली उसका नाम, उसकी एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमने देख ली, इट्स नॉट इनफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड सो दैट यू कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप होलिस्टिकली। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, और जो लोग नए अभी बीएड के प्रोग्राम में भर्ती हुए हो, आप लोग भी करोगे। वन वे यू पीपल आर वेरी वेरी लकी हियर, because I could find that you people are in this institute, there are many B.Ed programs being run. अगर इतने सारे B.Ed programs हो रहा है अलग अलग स्पेशलाइजेशन का, तो आपको इसी जगह से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है जो शायद आपको कहीं और जाकर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं विजुअल में स्पेशलाइजेशन करने आई हूँ, लेकिन दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में जानने में क्या नुकसान, क्योंकि एज अ स्पेशल टीचर I need to work with all of them. हमें मालूम है हमारे जो करिकुलम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ब्रीदिंग स्पेस कम देता है, लेकिन उसमें ही अगर आनंद लें और उसकी जो बेसिक बातों को समझ पाए तो मुझे लगता है कई बार सिलेबस भी उतना भारी हमको नहीं लगेगा। थोड़ी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की कोशिश करो, थोड़ी रिफ्लेक्ट करो कि क्या आपने सुना, क्या आज आपने सीखा, एंड दैट विल हेल्प यू। जो मुझे लगता है मेरे इतने लंबे अनुभव से, हम लोग ज़रूर कहते हैं रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, लेकिन ये सब चीज़ों को समझने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, वी नीड टू हैव एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स विच मे अराइज फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। और हमारे इस काम में बहुत ज़्यादा सहयोग या बहुत बड़ा सहयोग कौन दे सकते हैं? बच्चों के पेरेंट्स। सो अ चाइल्ड हु हैज़ बीन रिस्पेक्टेड बाय द टीचर्स, एक्सेप्टेड बाय द पेरेंट्स एंड ऑल्सो बाय द क्लासमेट्स, आप देखेंगे उस बच्चे की इंक्लूजन आसान हो जाता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ से जो सुनेंगे, बस सुनकर मत जाइए, बस इसको केवल CRE पॉइंट्स में काउंट मत करिए कि मुझे 12 CRE मिला या 18 CRE मिला। साथ ही साथ रिफ्लेक्ट करिए हमने क्या सीखा और इसमें से कौन सा चीज़ हम अपने जब काम के जगह पे जाएंगे यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड यू विल फाइंड दैट योर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस हैव बीन सो मच मोर मीनिंगफुल। नंबर तो है ही है, परीक्षा में भी बैठते नंबर मांगते हैं, यहाँ भी वही है। तो इसीलिए उसके अलावा, क्योंकि मेरी थोड़ी एक्सपीरियंस कई बार कहता है वी ज्वाइन अ CRE टू गेट द CRE पॉइंट्स, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। You are giving your 2 days, all the speakers are coming here, they will be deliberating on different topics, so it is for you to take the best of it and practice it. Thank you so much and wish you all the best and wish a very, very good national conference, and thank you again for calling me here. So thank you once again, ma'am. Now I would like to invite our chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta, sir, from whom we are learning each and every day something or the other. So being such a high position, being at such a high position, holding so many organizations together, but every day we get to learn from him. So without wasting our time, I know because you're eagerly waiting for him to, that is, have his motivational words and listen to him.
आप में से मुझे 2-4 बच्चे ये बताएं कि सीआरई का मीनिंग क्या है। मेरा नाम राहुल है। पहले इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, और इसका मेन पर्पस होता है कि मतलब कि स्पेशल एजुकेशन में हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती है, कुछ नई स्ट्रेटजीज आती है, जो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं तो हमें उनके बारे में अवेयर होते रहें कि भाई ये स्ट्रेटजीज आई हैं, ये टूल्स आए हैं, ये डायग्नोस्टिक किट्स आई हैं, तो इनसे हमें पता चलता रहता है, जिससे हम CWSN बच्चों के लिए और अच्छा स्ट्रेटजीज प्लान कर सके। थैंक यू वेरी मच। जोरदार एक बार क्लैपिंग। आज का जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के मायने आप सबको मालूम है, मुझे को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे डॉक्टर स्वाति सन्याल जी ने बताया, मानव का जो जन्म हुआ, पृथ्वी पे जो इंसान पैदा हुआ, कहते हैं कि पहले मछली के रूप में, फिर वो मछली से 2 रूप आए, फिर कछुए का अवतार हुआ, वो अवतार हुआ, और इस प्रकार से करते करते इंसान बना। अगर हम इंसान कछुए से या मछली से हम इंसान बने हैं, तो एक इंसान के अंदर, किसी के अंदर कोई शक्ति है, किसी के अंदर कोई शक्ति है, किसी के अंदर कोई अच्छी चीज है, किसी के अंदर कोई अच्छी चीज है। कोई आदमी बहुत तेज दौड़ सकता है, कोई आदमी क्रिकेट बढ़िया खेल सकता है, कोई आदमी बढ़िया गा सकता है, कोई बढ़िया डांस कर सकता है, कोई बढ़िया दिमाग उसका बढ़िया है, किसी का दिमाग इकोनॉमिक्स में बढ़िया चलता है, किसी का फाइनेंस में चलता है, किसी का किसी चीज में चलता है। तो अगर कुदरत के किसी भी कारण से या किसी भी वजह से हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके कोई चीजें डिफरेंट है हमारे से, लेकिन ये तो नहीं कि वो इंसान नहीं है, ये तो नहीं कि वो मानव नहीं है, ये तो नहीं कि वो आदमी नहीं है, ये तो नहीं कि वो हमारे भाई नहीं है, हमारी बहनें नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। मानवता के अगर हम उससे सोचें तो हम एक ही परिवार, एक ही सिस्टम से पैदा हुए इस धरती पे जो पैदा हुए हैं, जो आए हैं, वो अभी एक ही सिस्टम से हैं और सब हम एक ही हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात, हम केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पढ़ाई से आगे हट करके भी हमें यह समझना चाहिए कि वो और हम सब एक हैं। अब इसको बहुत सारा, देखिए आज परिपाटी चल रही है, पैसे वाले आदमी गरीब आदमी को ज्यादा महत्व नहीं देते, जो नॉर्मल जो बच्चे, मान लो बच्चे या इंसान जो हैं, वो कहते हैं ये तो स्पेशल एजुकेटर है, कई बार उनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो ये हमारे अपने सामाजिक तौर तरीके गैप्स बन गए हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको ये समझाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन तो मिल करके इकट्ठी होगी ही होगी, सारी एजुकेशन एक है, हमें उनको अलग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये स्पेशल बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चे हैं, ये स्पेशल एजुकेशन है, ये नॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे के लिए स्पेशल कुछ चीजें दी जाएं तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल बच्चे को दी जाने वाली हर चीज उसको मिलनी चाहिए। तो आज अगर हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे पिताजी या हमारे भाई बहन, बच्चा कोई घर में बीमार हो जाता है, तो क्या हम उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते? किसी को भगवान ना करे को कैंसर हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो गए, पैर टूट जाए, कुछ चीज़ हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, तो हम उसका इलाज कराते हैं ना। आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चे भी हमारे परिवार के, हमारे इस घर के, इस विश्व में जो हमारा एक परिवार है, धरती के ऊपर जो मानव जाति है, इस परिवार के वो हिस्सा है और हमें उनको साथ लेके चलना है। बल्क में हम नॉर्मल जो आदमी है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसमें सारे काम करने के गुण हैं, और जो बच्चा कोई चीज एक नहीं कर सकता, तो हमें उसको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। और बीइंग एन टीचर, बच्चों, भगवान कृष्ण को कहते हैं कि इंसान के अंदर 36 गुण होते हैं। परिपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसके अंदर 36 गुण व्याख्या की है आदरणीय अपने भगवान कृष्ण जी ने महाभारत में। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर भी 32 गुण थे, 3 गुण उनके अंदर भी नहीं थे। तो कोई भी आदमी दुनिया में परिपूर्ण हो ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, और इस भावना को हमें एज ए टीचर बाहर निकालना चाहिए। भगवान कृष्ण अपनी माता के गर्भ से पैदा हुए जेल के अंदर, और मां यशोदा के यहां जाकर के पले।
आज अगर 32 और 33 गुण भगवान कृष्ण के अंदर आए तो उस माँ यशोदा के लालन पालन की वजह से आए। माँ यशोदा ने उनको इस प्रकार से उनका लालन पालन दिया और सारे संस्कार दिए, वो बच्चा, वो कृष्ण इंसान से भगवान बन गए और उनको आज सारी दुनिया फॉलो करती है। आप ये समझ लें कि ये जो टीचर्स होते हैं ये माँ यशोदा से कम नहीं होते। टीचर्स भी जो हैं माँ यशोदा का रूप हैं। क्यों? वो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, एक माँ वो होगी जिन्होंने उस माँ ने जिसको उस बच्चे को पैदा किया है, और एक आप हैं माँ यशोदा का रूप, जो उन बच्चों का जीवन और संस्कार बनाएंगे। उन बच्चों को जो पढ़ाई आप देंगे वो आज आपसे पढ़ के, वो संस्कार आपसे लेके, वो जीवन में आपसे वो सब कुछ सीख करके पूरा जीवन उन्होंने उन्हीं संस्कारों के हिसाब से बताना है। माँ ने तो जो जन्म देना था वो दे दिया, अब वो जो संस्कार आपने उनको दिए हैं, तो एज ए टीचर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसा उनको मानव बनाएं, ऐसे गुण उनके अंदर पैदा करें। और ये भूल जाइए कि हमारे टाइम टेबल क्या है, ये भूल जाइए कि हमारी सैलरी कितनी है, ये भूल जाइए कि हमारे को डीए कितना, टीए कितना, क्या है, ये है, वो है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। एज ए टीचर हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को हम ऐसा संस्कार ऐसा डेवलप करें कि वो अपने जीवन में आपको याद रखें। और एक आप सबको याद होगा, आप भी किसी टीचर से पढ़े होंगे। आप जीवन में सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन अपने टीचर्स को, तो आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनको आप याद रखते होंगे। तो क्या आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो आपको याद नहीं करेंगे? तो आपको एक जीवन में पैसा कमाना, नौकरी करना, तनख्वाह लेना, अपने परिवार को चलाना, अपनी दिनचर्या को चलाना, तो जीवन को जीने का एक साधन है मात्र। एक जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। आपको कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिसको आप एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर ऐसा कुछ डिलीवर करें, ऐसे उन बच्चों का भविष्य बनाएं कि वो बच्चे जीवन में आने वाले समय में आपको याद कर सकें। मुझे जीवन में ऐसा लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। कोई स्वर्ग और नरक की जरूरत नहीं है। मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन यही सब स्वर्ग नजर आता है। हमारे टीचर्स इतने टैलेंटेड टीचर हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारे जो डॉक्टर सरस्वती मैम है, डॉक्टर संजना जी और दूसरे जो सीनियर लोग हैं, वो हमारे डॉक्टर अनमोल जी जिन्होंने इस कॉलेज की नींव रखी, वो किसी वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं। उसके बावजूद इतना ये इनिशिएटिव लेना, सीआरई जैसे प्रोग्राम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आपकी विजिट्स, इतना सुंदर तरीके से प्रोग्राम करना, ये एक बधाई के पात्र हैं। आपको केवल ये बीएड कर लेना, केवल आपको सीआरई ले लेना, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाना, यही आपका जीवन खत्म नहीं होता है। आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। मल्टी टैलेंटेड के अंदर क्या क्या चीज़ें, आपको 2 साल का जो बीएड के बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो चाहे तो ग्रेजुएशन बीएड करते करते 2 साल का एमबीए डिस्टेंस लर्निंग में प्रोग्राम ऑप्ट कर लें। वो जैसे उनकी बीएड पूरी होगी वो एमबीए भी कर लेंगे। अगर आप एमबीए नहीं करेंगे तो आपकी जॉब लगेगी, वो आप एज ए टीजीटी कहीं जॉब मिलेगी, और जैसे आप साथ साथ एमबीए कर लेंगे आपकी मास्टर डिग्री भी हो जाएगी, आपको पीजीटी जॉब मिलेगी। आपको टीजीटी में अगर सैलरी आपकी 30-40 हज़ार रुपये होगी, 50 हज़ार रुपये होगी, तो एज ए पीजीटी आपकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये होगी। आपको इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में सीडीएल प्रोग्राम भी है। बहुत थोड़ी सी फीस के अंदर आप एमबीए करेंगे, और मैं आपकी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मैडम से कहना चाहूँगा कि एक दिन इसका स्पेशल लेक्चर रखें ताकि बच्चे इस टाइम के अंदर वो सब कुछ कर पाएँ। इग्नू के हमारे यहाँ दिल्ली में हाईएस्ट बच्चे 13,500 बच्चे, 15,000 बच्चे के करीब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। आप एक छोटा कंप्यूटर का 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करिए,
6 महीने का कोर्स करिए, ताकि आप अपने टीचिंग करते करते कंप्यूटर के टैलेंट्स आपके अंदर आ जाएं। जब आप एज ए टीचर काम करेंगे, आपको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आती होंगी, तो आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपको जॉब भी जल्दी मिलेगी, आपकी प्रमोशन भी बहुत जल्दी होगी, और आप बहुत जल्दी टीचर से जो है ना डिप्टी डायरेक्टर फिर डायरेक्टर भी बन पाएंगे, और कहीं वाइस चांसलर और हो सकता है आने वाले टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। तो ये कैसे होगा? जब आपके अंदर मल्टी टैलेंट्स होंगे। आपको गाने का शौक है तो 3 महीने का, 6 महीने का गाने का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर 6 महीने का, 1 साल का कोर्स है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ HRD की आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। आपको पेंटिंग का शौक है तो आप एक साल का पेंटिंग का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लीजिए। आपको आपकी B.Ed भी होगी, M.Ed भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, और आप अगर 1 साल का पेंटिंग का डिप्लोमा लेते हैं तो उस स्कूल में जहां आप काम करेंगे, हो सकता है कि वहां पेंटिंग के टीचर की जगह भी आपको यूज करें, तो आपके अंदर मल्टी स्किल्स आ जाएंगे। कोई भी शौक, कोई भी इंटरेस्ट, कहीं भी आपका ये लगता है आपको कि मेरा इस चीज में शौक है, तो आप इस कोर्स को करने के साथ साथ, इस ट्रेनिंग को करने के साथ साथ मल्टी स्किल्स अपने आप को करें, मल्टी स्किल्स डेवलप करें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हों, चाहे आपके दूसरे स्किल्स हों। आपका जहां इंटरेस्ट हो, जो चीजें उसमें कर सकते हैं। लेकिन उन सब से पहले मैंने जो पहली 2 चीजें बताई, एक चीज ये कि आप कमिटेड होने चाहिए अपने बच्चों के प्रति, आप अपने लिए सीखें, और दूसरा इस जो आपकी जो CRE है, इसको बहुत सिंसियरिटी से इसको सुने सारी बातों को। यहाँ हमें सुनना नहीं है, यहाँ हमें पढ़ना नहीं है, सीखना है। आपको यहाँ बैठ के सुनना नहीं है, आपने जो कह दिया सुन लिया, बात खत्म होगी। आपको सीखना है। आप डॉक्टर स्वाति सान्याल जी ने अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। आपके हाथ में कागज और पेन होना चाहिए, पैड होना चाहिए। आप नोट करिए, नोट करके जाके उसको गूगल से सर्च करिए, और आपके लिए कौन सी चीज कहाँ वो जरूरी है, वो सब काम करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। So now, we would like to request Mrs. Saraswati Sharma, ma'am, Dean Academics at Ashtavakra Institute of Rehabilitation Science and Research, to give vote of thanks for inauguration program. On the behalf of the Ashtavakra Institute, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Swati Sanyal, Course Director, Durga Bhai Deshmukh College, and Dr. Ram Kailash Gupta ji, Chairman of Technia Group of Institutions. Thanks for taking the precious time from your day and enlightening us the strategy and challenges for the promotion of inclusion. इस फील्ड में इस तरह के स्पेशल स्टूडेंट्स थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव हैं तो उनको किस तरह से डील करना है, आप अपने सहनशीलता से दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाकर उनके साथ डील करना सीखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मंच पे बैठे सभी मेरे साथियों का, हेड्स का, और सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।